जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो होने जा रहा है हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के बारे में क्या क्या हो रहा है दुनिया में हिंदुओं के अगेंस्ट, उसके ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let us not shy away from the fact that Hindus are being targeted around the world. This is the price, I think, as Sushant also said, we have to pay for our tolerance. From Leicester to Toronto to Dhaka to Melbourne to Palamu to now New York, there have been hundreds of Hindu-phobic attacks. Ironically, the local Western press, Anand, covers these attacks more than the Indian press. This is selective and agenda-driven because it wants to portray India as anti-Muslim fascist Hindutva state. We've just heard the Supreme Leader of Iran bleat out this gibberish. I'm glad we responded. But how many people and how many countries will we respond to when our own people and our own opposition leaders in our own country are peddling this shameless propaganda? It's the same everywhere. The fate of Hindus is sealed, like it or not. What is happening to the peaceful community of Hindus abroad is appalling. Anand, I don't want to sound patronizing. Please don't misunderstand. But wherever you look, Hindus are suffering. It is important to highlight their suffering in a developing country than a developed one like the UK or the USA. So the second point now, they are watching us. And what do they see? They see a weak state. Let me explain. Even at this juncture, when all my sympathies are with the Hindus of the UK or Canada or the USA, I want you and all Indians and all diaspora to look at Bangladesh. From 29.5% in 1931 to 9.5% of population in 2011 to 8% now. The Hindu population of Bangladesh or erstwhile East Pakistan has dwindled decade on decade. To add to the misery, 11.3 million Hindus were forced to flee between 64 and 2013. 2.4 million perished in the 1971 genocide. As many as 1.2 million Hindus' families have been dispossessed of 2 million acres of land. Nobody is talking about anything. 12.6 million is the current population. If the trend continues, there will be none left, as many academics say, in 30 years. The spate of terrible violence, rape, murder, looting, arson, temple destruction, Anand, is a pointer to an ominous future for the Hindus there. Saving Bangladeshi Hindus is the need of the hour. The world is watching, but what are we doing? The situation is calamitous. District after district, shops have been looted, homes torched, temples desecrated, deities burnt. More than 50 Hindu teachers and vice chancellors have been forced to resign. Lynchings have happened inside police stations. We have to act. We have the CAA. It must no longer remain an amnesty. We must arm it. Even as we welcome, just 30 seconds, even as we welcome Bangladesh cricket team amid an ongoing Hindu genocide in their country, let me give you a disturbing statistics. Of the hundreds of thousands of Bangladeshi Hindu refugees who escaped the 1970-71 Bangladesh genocide and settled in India, only 14 have been given citizenship through the CAA. Only 14. Yeah. That is less than the number of Bangladeshi cricketers that we are currently welcoming raucously. Will we wait till we have to airlift the last Hindu from Bangladesh? This is the problem. We are watching them, but the countries are also watching us, and they are seeing that we are not acting ourselves. We are not helping Hindus ourselves. Well, you make a very strong point there, but the point is that somewhere in power and those in power have to be convinced that the responsibility of Hindus across the world lies with Hindustan. Look, Anand, let's be honest. There is no such thing as radical Islam. It is Islam. You are in an Islamic majority country at the mercy and discretion of those who allow you to not follow what Islam is, to not wear what is prescribed in Islam, to not behave what is prescribed in Quran. As simple as that. We've seen in country after Islamic country, the switch from so-called modernism to Islamism is at the click of a finger. Have we forgotten the Hudud ordinances that General Zia brought in? Have they been taken back by all the prime ministers supposedly more modern and more moderate than General Zia? No, because there is something called a universal law and there is something called the Sharia. And you always sooner or later bank upon the Sharia. So for you to say well-meaningly that why don't Hindus fight back? Are we reinventing the wheel here?
a minority in an Islamic country can never fight back because you have codified Islamic laws. Right. There is a blasphemy law. So in Pakistan, would Hindus collect and say we oppose this law? I'm sorry, the Supreme Court has ratified it. And let us talk honestly out here. A practicing Muslim who believes in the Sharia and every single word that there is in the Holy Quran is a good Muslim. While a Muslim who drinks, fornicates, indulges in idle talk or music, supports Muslim women who reject the burqa, draws a portrait of whosoever he wishes to, marries a non-Muslim, is homosexual, gives equal share of inheritance to females, and is fine with all his fellow Muslims being all of the above, he's a bad Muslim. It's as simple as that. It's codified in the holy book. You can't do anything about it. So the only viable thing for a minority, persecuted minority is, it breaks my heart to say this, but it is true, is to leave and come to India. We should open our doors. Dushyant talked about Bangladesh as being the land of holy rivers and the genesis of all that is fantastic about Hinduism. There is one other country that was the genesis of Hinduism as well, Afghanistan. How many Yes. Hindus are left there? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कमेंट भी करिए ताकि मेरे को पता चल सके आपका क्या विचार है। और ये देखिए, इस वीडियो में आनंद रघुनाथन बात कर रहे हैं जो ये दुनिया में जो एक व्यवहार सा बन गया है ना, कि हिंदूज आर नॉट गुड, स्पेशली दिस एडजॉइनिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया से एडजॉइन कंट्री जो हैं वो है, एक है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान और एक है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हिंदूज़ हैं, बहुत कम है। उधर भी आप लोगों को तो पता ही होगा, उधर एक रेडिकल इस्लामिस्ट रिजीम इन पावर है। और ये इधर एक वक्त में एक टाइम हुआ करता था हज़ारों साल पहले, उस टाइम तो इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब पूरा हिंदू या बुद्धिस्ट हुआ करता था, या दूसरे कोई और भी रिलीजन हो, ज़ोरास्ट्रियनिज़म, वो फॉलो करते थे वो लोग। पर इधर वो जो आक्रांतिकारी आए उन लोगों ने कन्वर्ट कराया सब लोगों को, तो फिर ये एक लड़ाई था उधर, पहले की बात है ये। तो फिर आनंद रंगनाथन इधर बोल रहे हैं कि हिंदुओं का जो एक प्रताड़ना है, वो प्रताड़ना अभी चलते जा रहा है, चलते आ रहा है। आपको तो पता ही होगा कि ये जो यूएस ने जो रिजीम चेंज किया था बांग्लादेश में, शेख हसीना को हटा दिया क्योंकि शेख हसीना उनको बेसिस नहीं दे रही थी और कोई स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ नहीं दे रही थी, या और भी कुछ हो सकता है जो नहीं दे रही थी, क्योंकि ये जो हुआ था उधर बांग्लादेश में वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, अननेचुरल तरीके से किया था। और अननेचुरल तरीके से इसलिए किया गया था क्योंकि आपको दिखाई देता है उसमें पूरी का पूरा इम्प्रिंट दिखाई देता है यूएसए का। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उधर हिंदुओं के साथ अटैक्स हुए, उधर प्रताड़ना हुई इंडिया हिंदुओं के अगेंस्ट, और हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी औरतों का बलात्कार हुआ उधर, और वो बलात्कार उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ हुआ, उनके देखते हुए हुआ। और उधर हिंदू प्रोटेस्ट करने भी आए, ये भी एक चीज़ है। जो इंडिया के हिंदू अभी आपको दिखाई दिए होंगे, हिमाचल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जब ये इस्लामिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने एक अवैध मस्जिद बना लिया था और वो उसको वफ़ डिक्लेयर कर दिया था वफ़ बोर्ड ने। उस टाइम प्रोटेस्ट हिमाचल में भी स्टार्ट हुआ था क्योंकि हिमाचल के लोगों को पता है प्रोटेस्ट कैसे करना है। और इधर जब आप किसी भी एक बंदे को आप वॉल में सटका कर रख देते हो ना, तो फिर उसका रिस्पांस भी आता है। और रिस्पांस आया था, बिल्कुल रोबस्ट रिस्पांस आया था, ऐसा रिस्पांस नहीं आया था। उन लोगों ने बोला था कि आप हमारे साथ ऐसे कर नहीं सकते हो, ये गलत है। आपका जो ये नीति है ना कि आप हिंदुओं को, इधर के जो माइनॉरिटी है उनको ठीक तरह नहीं रखते, वो एक नीति तो गलत है। और पाकिस्तान का तो आप लोगों को पता ही होगा, उधर तो पूरी तरह सिंध में और कराची में, लाहौर में हिंदू हुआ करते थे। बहुत सारे हिंदू जो सेठ, बिजनेसमैन, सब हिंदू हुआ करते थे उधर पार्टीशन से पहले। और एक ये भी आंकड़ा है कि उधर जो कराची है उधर तो 50-60% हिंदू हुआ करते थे और बाकी जो मुसलमान थे उधर। और मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन, उधर के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, सब हिंदू थे।
जैसे आपको पता होगा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भी इंटेलेक्चुअली बोल के उधर से हटाया गया, क्योंकि वो बहुत सारे जो मुसलमान बोल रहे थे कि इनको नहीं हटाओगे तो फिर हमको जॉब्स नहीं मिलेगा, उधर के जॉब जो सेक्टर है टीचर्स प्रोफेसर्स उधर हमको जॉब नहीं मिलेगा अगर ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इनको आप हटाओगे नहीं। तो फिर उधर जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लिंसिंग हुआ, उधर से भगाया गया कश्मीर पंडित उसका। वैसे ही पार्टीशन के वक्त जो हिंदू थे उधर पाकिस्तान के अंदर कराची लाहौर और जहाँ भी हिंदू थे उधर भगा के उधर इंडिया में लेके आ गए उनको, और बहुत सारे सिख भी थे उधर, तो फिर सब इंडिया में आ गए थे। और वो सब तो बात की बात है, पर उधर भी क्या होता है आपको दिख रहा होगा ना कि सिंध में जो गरीब दलित हिंदू हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज इन पाकिस्तान आर दलित हैं, वो लोग ट्राइबल भी हैं। और वो जो दलित और ट्राइबल लोग हैं उनको इसलिए रखा था क्योंकि वो ये बोलते हैं मजदूरी कर सके, उनका जो सीवेज सिस्टम है उसको क्लीन कर सके। क्रिश्चियंस को भी इसलिए रखा था उन लोगों ने क्योंकि ये गलीज काम है, वो गलीज काम हम नहीं करेंगे, हम आप लोगों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप हमारे सर्वेंट हो इसलिए रख रहे हैं। उनके न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे एड्स लेके आए थे वो दिखाई भी देता था। और इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो थे जिन्ना जी, जिन्होंने उस स्टेट को बनाया था, वो भी उन्होंने बोला था कि सब गिरजाघर जा सकते हैं, सब अपना टेंपल वेंपल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब झूठ है, पर वो लोग झूठ परोसते रखते हैं उधर अपने देश में, उनको झूठ बोलना अच्छा लगता है। और उधर तो ऐसे ही होता है, उधर बच्चियों को 6-6 साल 5-5 साल की बच्ची, 8-8 9-9 14-14 13-13 साल की बच्ची को एक 60 साल का 80 साल का बाबा जाके शादी कर लेता है और वो बच्ची को कन्वर्ट करा देता है। और बच्ची जब कोर्ट में लेके आते हैं और बच्ची बोलती है कि मैंने अपने जो रज़ामंदी से शादी की है। कौन सी बच्ची रज़ामंदी से शादी करती है, वो भी किडनैप करके लेके जाते हैं बच्चियों को ये लोग। इसीलिए हमारे जो स्टेट है, हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने CAA लगाया था, उसको बहुत देर से बैक बर्नर में लगाया था। उसके बाद जब उनको थोड़ा सा टफ लविंग मिला तो फिर उन्होंने इलेक्शन के आते आते उसको पास कर दिया था। और बांग्लादेश में तो पता ही होगा आप लोगों को क्या हालत हुए थे हमारे हिंदू भाई बहनों का, पार्टीशन के बाद इधर आए और इधर आके उनको सिटीजनशिप नहीं मिला। तो फिर ये सब है। और दुनिया में जो भी प्रोपागेंडा है ना, आपको US का प्रोपागेंडा मिलेगा। ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट्स हैं, ये सुप्रीमेसिस्ट हैं जो US में हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल्स में, जो अभी X हैंडल्स में है ना, उधर जाके हिंदू भगवानों में, हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट अनाप शनाप बोलते हैं ये वाइट रेडिकल्स, वाइट सुप्रीमेसिस्ट। और इनका जो इस्लामिस्ट रूप है, उन्होंने तो हमारे भाइयों बहनों हिंदुओं के लिए, जो हिंदुस्तानियों के लिए एक नया नाम भी रख दिया है, पजीत। तो फिर ये पजीत बोल रहे हैं, क्योंकि पजीत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो इस्लामिस्ट हैं और ये जो वाइट नेशनलिस्ट हैं, इनको एक देश बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो है इज़राइल। क्योंकि इज़राइल को ये वाइट नेशनलिस्ट लोग समझते हैं कि ये एक ज़ियनिस्ट देश है, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है उनके अगेंस्ट, वाइट नेशनलिस्ट के बोलते हैं उसके भी, उनके अगेंस्ट भी। और इस्लामिस्ट तो आपको पता ही है, उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इज़राइल, उनको नासूर लगता है उधर अरब देशों में। तो फिर वो एक चीज़ है। तो फिर हिंदू तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, हिंदू फोबिया हो रहा है, हिंदू फोबिया नाम का लॉ भी बनना चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हिंदुओं के अगेंस्ट तो ऐसे साजिशें चलते रहती हैं और आगे देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि ये तो लंबा चलने वाला है। और हमारे देश के लोगों को, हमारे गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर प्रेस करना चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट से, क्योंकि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये गलत चीज़ें क्यों कर रहे हैं आप लोग। अगर करेंगे तो फिर गलती होगा आपके साथ। तो फिर वो गलत चीज़ों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए था। और उधर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हायर लर्निंग प्लेसेस हैं, उधर भी हिंदू फोबिया कर रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड अगेंस्ट हिंदुत्व ऐसे कॉन्फ्रेंसेस लगा रहे हैं USA में, ये जो एंटी हिंदू लोग हैं। तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी जो हमारे मिस्टर राहुल गांधी है, वो तो उधर जाके हिंदुज़म के ऊपर अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देवता भगवान नहीं होता है, हिंदुज़म के बारे में अजीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो फिर उनको भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि उनको तो हिंदुओं को बांटना है बस। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद। और टेक केयर दोस्तों। क्या होता है आगे देखते हैं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई चलेगी और इस लड़ाई में
आप लोगों को भी भागी रहना पड़ेगा और वो भागी बहुत अच्छी तरह रहेंगे।